गवर्नमेंट कहती है कि आप पहले खाली अपनी मंडी में बेचते थे, अब आप पूरे देश में कहीं पर भी बेचते हैं, तो क्या दिक्कत है भाई उसमें? अब टेका कहेगा उसकी क्या इच्छा है। टेका के पास आज की डेट में 800 करोड़ की संपत्ति आई, वो कहां से आ गई? टेका जी या जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग ग्राउंड जीरो पर आ जाए और कम से कम खुद किसानों के बीच में जाकर बोले कि पिछले 20 साल में वो कभी खेत में गए हैं क्या, जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं। नहीं देखिए, 11 मीटिंगें होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब किसान का मुद्दा क्या है, मैं तो एक बार डिबेट में भी टेका जी के साथ आ गया, वो भाग गया डिबेट से उस वक्त। टेका जी ये बताएं ना, जो 3 मुद्दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी की बात कर रही है, एमएसपी कहीं खत्म नहीं हुआ। ये श्योर करते हैं कोई भी पार्टी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ ਐਨਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰੋਫ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜੋ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਆਖਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰੋਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਤੇ ਕਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਗਲ ਲਈ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪਸ਼ੂਪਤੀ ਕੁਮਾਰ ਪਾਰਸ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਸ਼ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਮਾਨਨੀय ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਾਫ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੜਿੱਕਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਵੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣਦਾਰ ਆ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ, ਦੂਸਰੇ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਆ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ,
ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਾ। ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਇੰਪਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। तो आपका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ बनाया गया पंजाब, उसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल दीजिए। देखिए, पार्टी में लीडरशिप चेंज होती है, पार्टी में चेंज ऑफ लीडरशिप हो गया। पहले पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे चिराग पासवान जी थे, अब पार्टी में प्रॉपर इलेक्शन हो गया। इलेक्शन के माध्यम से पार्टी के माननीय पुष्पपति पारस जी अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन गए, उनके साथ पूरा पार्लियामेंट्री बोर्ड, पूरी पार्टी उनके साथ में है। और साथ में सबसे बड़ी बात है कि नाउ ही इज़ एन कैबिनेट मिनिस्टर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो, सो ही हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑनरेबल PM, बाय ऑनरेबल दिस MHA होम मिनिस्ट्री एज वेल एज ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो थ्रू दैट नाउ ही इज़ द नेशनल प्रेसिडेंट एज वेल एज। तो क्या सर ये आने वाले जो 2000 भाई के जो पंजाब के चुनाव में क्या पार्टी यहाँ कुछ इलेक्शन? और पार्टी ग्राउंड जीरो पर बहुत टाइम से काम कर रही है, तो कहीं यहाँ पर लीडरशिप की कमी की वजह से ग्राउंड पर काम तो हो रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो लीडरशिप की यहाँ पर जो यहाँ के प्रधान सिस्टम जो चल रहा था वो इलेक्शन के टाइम में दाएं बाएं जाते थे और पूरा टीम डिस्टर्ब हो जाता था। पंजाब के आप कौन से मुद्दे पे आप चुनाव लड़ना चाहेंगे? पंजाब में हमारे पास 3-4 मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ का है, जो नेशनल यूथ कमीशन हम लोगों ने पार्लियामेंट सेशन में उठाया था। हमारी पार्टी की तरफ से नेशनल यूथ कमीशन पूरे देश में होना चाहिए, जिससे नेशनल यूथ कमीशन का थोड़ा सा मैं कंसेप्ट आपको देता हूँ। उसकी नेशनल यूथ कमीशन अगर लागू होता है हर स्टेट में, सेंटर के माध्यम से या स्टेट के माध्यम से, उससे क्या होगा, चीफ मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी रहती है टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयड यूथ, कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी रहती है। हर एक यूथ उस प्रदेश में क्वेश्चन कर सकता है ऑनरेबल CM को, वहाँ जो भी हो उस वक्त। नंबर 1 वो है। नंबर 2 जो ड्रग माफिया का कंट्रोल है यहाँ पर, जिस स्ट्रक्चर को ड्रग माफिया ने पूरा ब्लॉक करा है, जिसके नाम पर पंजाब में कांग्रेस भी आई है और जिसके नाम पर आप भी, केजरीवाल भी वहाँ से उठ के नोटंकी करता रहा। दिल्ली को तो आज तक उसने पानी नहीं दिया, दिल्ली में तो सड़कें पानी से थोड़ी सी बारिश पड़ जाती है तो पूरी दिल्ली बंद हो जाती है, वहाँ तो वो कुछ कर पाया नहीं। और यहाँ पर झूठ बोलता है मैं बिजली फ्री दूंगा। क्या क्यों चाहिए बिजली हमको फ्री? हमको एम्प्लॉयमेंट मिले, हमको रोज़गार मिले, हम अपने जेब से पैसा खर्च करके बिजली लेंगे, हमें भीख थोड़ी मांगना है। और हम सबको पता है दिल्ली में वो बिजली किसको फ्री दे रहा है, कौन से लोग कहाँ से आए हैं जो झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं उनको बिजली फ्री दे रहा है, बाकी किसी को नहीं दे रहा है दिल्ली वालों को फ्री। वो सब झूठ है, नोटंकी है। हम चाहते हैं कि जो भी गवर्नमेंट यहाँ पर हमारे आ जाए, जो प्रेजेंट में हम लोग NDA अलायंस पार्टनर से दिल्ली में, प्रधानमंत्री जी दिल्ली से काम कर रहे हैं, पूरे देश में काम कर रहे हैं। हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी फूड प्रोसेसिंग है हमारे पास, हमारे मंत्रालय के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट, हम लोग तो 100% की बात नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम 5-7, 4%, 5%, 6% तक हम लोग एम्प्लॉय करने की कोशिश करें, जो फूड पार्कों के माध्यम से। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स जो पूरे देश के लिए जो स्कीम आई है, जिसमें कहीं पर भी इंटरफेरेंस स्टेट की नहीं रहेगी, डायरेक्टली पोर्टल पर हमारे बच्चे यहाँ पर या बिजनेसमैन उसमें पोर्टल पर चले जाएंगे, जिसमें प्रॉपरली सब्सिडी अप टू 50% तक रहती है। जहाँ कोल्ड स्टोरेज की भी रिक्वायरमेंट है, यहाँ इतने प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से हम अपने प्रोजेक्ट्स खोलेंगे जिसमें। और मैं दूसरी बात अपने मंत्रालय में भी जाकर ये देखूंगा कि पिछले मंत्रालय के टाइम से, जैसे हमारे यहाँ पर अकाली दल की हमारी बहन जी जो थी, जो यहाँ मंत्री थी इसी यूनिट्स की, तो उन्होंने किसी को उस वक्त में फूड पार्क्स जो दिए हैं, जो मैं आज पंजाब में यहाँ पता चला है कि वो फूड पार्कों में सब्सिडी तो ली गई है लेकिन काम नहीं हुआ है, उस पर प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश करूँगा कि उसमें प्रॉपरली देखें, इंक्वायरी करे, उसमें इंक्वायरी भी करे और इंक्वायरी भी करे, जो भी उसमें इन्वॉल्वड हो उस टाइम की चीफ मिनिस्टर, उस टाइम के मंत्री भी, और प्रेजेंट में जो भी इन्वॉल्वड हो उनके अगेंस्ट सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये उन्होंने खिलवाड़ किया अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ, बेरोजगार बच्चों के साथ, जिनके लिए वो फूड पार्क के नाम पर यहाँ पर पैसा दिया गया, उसकी सब्सिडी 50% खाई गई और उसके बाद उसको छोड़ा गया। तो सर ये आजकल जो किसान का मुद्दा है, तो पार्टी वो किसी लेवल पे क्यों नहीं सुलझा सकी? नहीं, देखिए 11 मीटिंगें हो गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। अब किसान
का मुद्दा क्या है। मैं तो एक बार डिबेट में भी टेका जी के साथ आ गया, वो भाग गया डिबेट से उस वक्त। टेका जी ये बताएं ना, जो 3 मुद्दे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एमएसपी की बात कर रही है, एमएसपी कहीं खत्म नहीं हुआ। गवर्नमेंट कहती है कि आप पहले खाली अपनी मंडी में बेचते थे, अब आप पूरे देश में कहीं पर भी बेचते हैं, तो क्या दिक्कत है भाई उसमें। अब टेका कहेगा उसकी क्या इच्छा है। टेका के पास आज की डेट में 800 करोड़ की संपत्ति आई, वो कहां से आ गई। वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ किसान है, जो छोटा किसान है, जिस बेचारे को घर चलाना है, परिवार चलाना है, अपने एरिया में खेती करना है, वो अपने घर एरिया में खेती करता है। टेका जी या जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि वो लोग ग्राउंड जीरो पर आ जाए और कम से कम खुद किसानों के बीच में जाकर बोले कि पिछले 20 साल में वो कभी खेत में गए हैं क्या, जितने भी लोग वहां पर बैठे हैं। तो ये सब जो चल रहा है, ये जैसे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। ऑलरेडी पिछले 70 साल से कहीं पर भी किसान को कोई बेनिफिट नहीं मिला। आज अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी क्रिएट की है किसान को डेवलप करने के लिए, किसान को इन्होंने बैगिंग बाउल लेकर खड़ा कर दिया है। हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि किसान को हम लोग भिखारी बनकर नहीं देखना चाहते, हम वो देनदार है। भगवान के बाद अगर कोई अन्न देता है तो वो किसान देता है पूरे देश में। तो हम चाहते हैं कि वो किसान हाथ फैला के नहीं आए, हाथ से ऊपर से दे दे। बदकिस्मती से जो पॉलिटिकल लीडर से जो चाहते हैं, जो देख रहे हैं कि अगर किसान इन तीनों स्कीमों के बीच में चला गया, इन तीनों स्कीमों के माध्यम से आगे आ गया, तो उसकी वजह से किसान इंडिपेंडेंटली काम करेगा, उसके घर में पैसा आएगा, वो किसी की राजनीति में नहीं फंसेगा। तो वो लोग सब राजनीति कर रहे हैं, इस पर कुछ पॉलिटिकल लीडर्स राजनीति कर रहे हैं, तो आप उस पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, नाउ इंडिया पंजाबी।